And joining me now are two very special guests, Waqeel Hassan, the rat miner hero, who's still searching for a home to live in after his house was demolished yesterday by the DDA, and Najeeb Jung, the former Lieutenant Governor. Remember, the DDA comes under the Lieutenant Governor's office. First to you, Waqeel Hassan साहब, ये हमें बताइए, कल रात को इसी समय हमने आपसे बात की थी, तब आपका घर डिमोलिश हुआ था, आप रास्ते पर थे. पिछले 24 घंटे आप कहां रहे हैं? क्या पूरी रात आपने रास्ते पर ही गुजारी अपने परिवार के साथ? जी सर, मैं आज भी उसी रास्ते पे सर, उसी फुटपाथ पे लेटा हूँ, अपने बच्चों की तरह अपने बच्चों के साथ वहीं बैठा रहा पूरे दिन और पूरी रात मैंने वहीं गुजारी है. और इन 24 घंटों में क्या किसी ने आपसे संपर्क किया और कहा नहीं नहीं हम आपको घर बना कर देंगे? क्योंकि एलजी और मनोज तिवारी जी ने हमें कैमरा पर कहा है नहीं नहीं हम आपके लिए घर बनाएंगे. क्या आपको कोई ऐसा आश्वासन मिला है? नहीं सर, मुझे कोई भी ऐसा आश्वासन अभी उनकी तरफ से कोई मुझे नहीं हुआ है. मेरे सुनने में ही आ रहा है, मैंने खुद भी नहीं देखा है कि वे सिर्फ मीडिया में इस चीज़ का अनाउंस कर रहे हैं. बाकी पर्सनली मुझे किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया इस बात को बताने के लिए कि आपको मकान बनाया जा रहा है या मकान दिया जा रहा है. किसी ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया सर. ये बताइए, जो कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी जगह पर था, एनक्रोच लैंड पर था, कल रात को आपने हमसे कहा कि आपने पूरे पैसे दिए थे, घर आपने मकान मेहनत से बनाया था. इसका पूरा ब्यौरा दीजिए कि क्या हुआ था. सर, पहली बात तो जहां मैं रह रहा हूं, जिस प्लॉट में रह रहा हूं और डीडीए जिस चीज को बता रहा है एनक्रोचमेंट किया गया है, मैं उसमें 1987 से अब तक के मेरे पास उसके पेपर है सर. दूसरी बात, यहाँ पर जो मैं रह रहा हूँ, मैंने ये जो मकान परचेज किया 2012-13 में किया था. 2008 में ये जो हमारी कॉलोनी थी इसे रेगुलाइज का सर्टिफिकेट दे दिया गया था और 1071 कॉलोनी में ये हमारी जो लिस्टेड है 691 में है सर. ये सब चीजें जैसे यहाँ हमारे यहाँ पे स्कूल भी है, लाइट भी है, पानी बिजली सब कुछ है और सभी चीजें यहाँ पे. ये सब चीजें देखने के बाद ही मैंने यहाँ पर पैसे इस प्लॉट में डाले थे. वो भी सर आज तक मेरे ऊपर इस प्लॉट का जो मैंने इसमें खरीदने के लिए लिए थे वो कर्जा मेरे पे आज भी बाकी है सर. Najeeb Jung, you are hearing what Waqeel Hassan is saying. You know, he's saying he put all his money into this land. This land has been regularized, he says, and was declared now unauthorized, and his house was demolished. How do you explain this, sir? Rajiv, thank you for this program. I think this is a most timely program for what's happening around us. You know, years ago, Dinkar wrote a book, Sanskriti ke 5 Adhyay, and in that Nehru wrote the introduction, quoting that Bharat ki Sanskriti ka saar kya hai? What is the essence of our culture? And I think the brutality of bureaucracy and civil service is now showing where we have come. Because obviously, very, very obviously, this man who is the poorest of the poor, whom we declared a hero, who was garlanded as he came out, and if you recall, the surprise on the faces of these 12 rat miners, when they came out of the tunnel, how surprised they were to be received and feted with flowers by ministers. His house is today demolished. You mentioned that the Honorable Lieutenant Governor and the MP have promised a house. That's laudable, I think. However, who will compensate for the trauma of the 3 children who were sitting there when the house was demolished? Who will compensate for the trauma that this man is going through sitting on a footpath, just having been feted a few months ago? But let me also tell you the rules of demolition. Government rules are absolutely clear that when you remove an encroachment, particularly of a dwelling, then the person has to be compensated with a space that is as good, if not better, than where he is living. So it is completely out of law to have removed him in the way they did.
in the brutality. I'm happy that the cold, bitter winter is not there. Otherwise, these guys would have gone and demolished this house in bitter cold night with those 3 children. And that is unfortunately showing what we have come to. The sense of power. Sure. Yes. Because, Mr. Jung, just to add to that, we have colonies in this city or indeed across the country, unauthorized colonies that get regularized because the people in those colonies have clout. This happens in every part of the country. Government land has been encroached upon by the rich and powerful, and they get away with it. They have the power to go to court, stop the demolition. Someone like Waqeel Hassan doesn't have that power. Is this an unequal society where those who live in unauthorized colonies can get themselves regularized or allow those colonies to continue for years on end? कोई बुलडोजर वहां नहीं आएगा, नजीब साहब. Absolutely. I mean, this is very, very evident from what is happening around us, and I'm telling you that this is against the law. You can't demolish unless you give him an alternate place. So what the gentleman in DDA has done is patently irregular. And what I would want to hear from the Vice Chairman DDA is what action is being taken against that man who went and demolished this. You see, this culture that you can go and bulldoze, this culture that you can lock up a person without any punishment to you, when you can order a lathi charge without any repercussions on you, this is all getting into our psyche, into the psyche and DNA of the bureaucracy. This is incorrect. And I think that it's time for us to protest. Well, वकील हसन साहब, पुलिस ने आपसे मारपीट की, क्या ये सही है? आपके जब आपने प्रोटेस्ट किया, आपसे मारपीट की, ये भी सही है? सर, पुलिस ने मेरे साथ, जैसे मैं यहाँ पर उनसे क्वेश्चंस किए कि आपने इसको क्यों वो कर रहे हो, उन्होंने मेरे से बोला कि ये अनऑथराइज्ड है. मैंने कहा सर, इधर भी मकान बने हुए, इधर भी मकान बने हुए, मेरे सामने भी मकान बने हुए हैं, और मेरे बैक साइड में डीडे की वॉल भी हो रखी है जिसके ऊपर तारों की फेसिंग भी हो रखी है सर, और मेरे सामने एमसीडी की वो भी हो रखी है सर. तो मेरा कौन सा प्लॉट ही अलग से है जब सब प्लॉट एक जैसे, तो मेरा प्लॉट अनऑथराइज कैसे हो गया? जब मैंने उनसे ये पूछा तो वो बोलने लगे ये हमसे बदतमीजी कर रहा. मतलब ये बात पूछने पे मुझे बदतमीज करार दे दिया गया, और पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती वैन में बिठा के पुलिस स्टेशन ले गए सर. और मुझे 12 बजे से लेके 8 बजे तक मेरी कोई कसूर नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा गया. उसके साथ साथ जब मेरे घर का गेट तोड़ा गया, जिसमें मेरे 2 बच्चे अंदर थे, उनके साथ भी बदतमीजी की गई, उनके साथ चाटे मारे, उनके जो माइनर नाबालिग है उनके साथ भी मार पिटाई की गई, और उन्हें मार पीट कर उन्हें थाने में लाया गया. उनको भी 8 बजे तक वहां बैठा के रखा गया, जिसमें मेरे एक 14 साल की लड़की है और एक 17 साल का लड़का है. उसके साथ साथ मेरा दोस्त मुन्ना है, वे भी जब वहां पर आए तो उन्हें भी उठा के थाने में लॉक कर दिया गया. हमें फिर 8 बजे वहां से छोड़ा गया, जब यहाँ पर सब कुछ, मेरा जो घर था, मेरा जो आशियाना था, उस सब को खत्म कर दिया गया और वहां पर दीवार कर दी गई. उसके बाद हमें छोड़ा गया सर. और मेरा सारा सामान रोड पे बिखरा हुआ था, मैंने उसे कलेक्ट करके वहां अपने जहां मेरा मकान टूटा है, अभी अगर देखेंगे आप वहां के विजुअल लेंगे तो सब लोग हम वहीं बैठे हुए सर, और वहीं बैठे रहेंगे अब जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता सर. तो आप वहीं बैठे रहेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता है. लेकिन ये बताइए वकील हसन साहब, जब आपको हीरो बनाया गया तब आप कई आपके साथ कई लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए, वीवीआईपीज ने फोटोग्राफ्स लिए. पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आपको कहा कि आपको कई इनाम मिलेंगे. क्या कहेंगे आज पुष्कर धामी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? सबने आपकी बहुत तारीफ की थी तब. सर, मैं कभी नहीं रोया हूँ और मुझे रोना भी नहीं आता है, लेकिन मेरे एक दिन आंसू आए थे सर, जिस दिन हम लोगों ने जो 41 लोग अंदर फंसे हुए थे सर, जब उनको निकाला तब आए थे. और सर, आज जो मेरा जिंदगी भर के जो मैंने कर्जा लेके, जो मैंने अपने जो बीवी के जेवरात वगैरह उन्हें बेच के, जो जमीन वगैरह बेच के मैंने प्लॉट लिया था, इसको इन लोगों ने तोड़ दिया और मुझे रोड पे बैठा दिया. मुझे आज रोना आ रहा है या उस दिन रोना आ रहा था. तो इन पॉलिटिशियंस की बात, इन्होंने मुझे शाबाशियां बहुत दी, लेकिन आज मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है. सब वादे करके रह जाते हैं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं. इनकी सारी पॉलिटिक्स, मुझे तो सर ये लगता है उद्घाटन करने में, अपनी वाद विवाद में, कहीं जीत गए वहां का जश्न मनाने में, कहीं हार गए वहां का
अंकन करने में इस चीज में निकल जाती है। हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं, मतलब कोई सुनवाई ही नहीं है इनके पास। पर कोई इनाम आपको दिया गया था, पैसे का इनाम दिया गया था तब? जी हाँ सर, मुझे 50,000 रुपए का इनाम दिया गया था। और वहां भी देखिए सर क्या कमाल की बात होती है, जो अंदर थे, आप भी खुद समझ सकते हैं, जो अंदर थे उन्हें 1 लाख रुपए दिया गया। और हमने अपनी जान की परवाह न करके, हम अपने बच्चों को झूठ बोल के, और कोई हमारे साथ जिनके घर में शादी थी, उस घर शादी को छोड़कर अपनी जान हथेली पर रख के वहां पहुंचे थे। उन्हें हमने तय टाइम से पहले भी निकाल के हजारों करोड़ रुपए उनके बचा के हमने उन्हें बाहर निकालता। वो हमारा इनाम था सर 50,000 रुपए का। जब हमने और आपकी जो स्टोरी अंदर थे सर उनको दिया गया 1 लाख रुपए। हमने आपकी जब स्टोरी वकील साहब कल की थी तो कई लोगों ने मुझे फोन किया, हम आपको उनको पैसा देना चाहते हैं। क्या आप पैसा चाहते हैं या अपना घर चाहते हैं, अपना ईमान, अपना सम्मान चाहते हैं? सर मैं सबसे पहले तो मेरा ईमान और सम्मान चाहूंगा सबसे पहले सर। दूसरी बात, जो घर मेरा तोड़ा गया है, मुझे मेरा घर ही दे दिया जाए। मुझे न तो पैसा चाहिए किसी का, न मुझे कोई सब्सिडी चाहिए, और न मुझे कोई नौकरी चाहिए। मुझे मेरा घर चाहिए, मुझसे से वही घर चाहिए जो इन लोगों ने तोड़ा, मुझे बना के मेरा घर वही दे दिया जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, न मुझे फ्लैट चाहिए, न मुझे बिल्डिंग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सर। आपको अपना घर उसी जगह चाहिए जहां वो तोड़ा गया है? जी सर, जी सर। नजीब जंग साहब, जितनी तेजी से इन लोगों ने मेरा घर तोड़ा है, उतनी तेजी से बना के मुझे दे सर ये। Najeeb Jung Sahab, is that possible? Is it possible to rebuild the house? Is it possible for the DDA, as he says, there are a number of other houses in that same area which are still standing? I think the DDA should be terribly ashamed of what they have done. They should not only make his house there, they should make a double-story house there to compensate him. I am frankly at a loss for words, because I think that the DDA and the Delhi police have put all of us at shame. I hang my head in shame at what the administration is doing. I spent 46 years of my life in government. Today I hang my head in shame at the brutality that I see and the attitude, because can you imagine, you'll make the house all right, but what happens to the 3 children's trauma? The beating that they received, this girl is of the age of puberty. She's 14 years old. Where has she been touched by the DDA people or by the police? Will she ever forget that? So the trauma will be there for life. They have scarred this family. So the DDA should compensate them by giving them a much better place to live. And I think all of us should somehow make a fund or something to contribute, because the rat miners are the most dangerous profession in India. Government has declared it illegal, and when we need them, you pull out these illegal workers and help rescue this tunnel, the people in the tunnel. So we have actually encouraged an illegal act to help where your legal system did not work. And then you punish him in this way. Obviously, the man from DDA who went knew this man. It is not possible that the police officer who went did not know that he is a rat miner who was involved in the Uttarakhand tunnel. So this entire action is patently illegal. The person But am I right? Am I right? Therefore, punished. Najeeb Jung Sahab, The you're police using officer excellent. who was... Am I right that if it was a wealthy man who had the influence to go to court, no DDA would come to demolish it? If he was part of the VVIP, Lattians elite, or call them what you will, no DDA will come to demolish a house which is illegal in a plush colony. Well, name me one house in which even if a chabutra has been demolished. घर तो बहुत बड़ी बात होती है, एक चबूतरा डिमोलिश नहीं करेगा डीडी और म्युनिसिपैलिटी, यहाँ घर डिमोलिश कर देते हैं। रेलवे के साइड में इतने गरीब लोग रहते हैं, वो क्यों रहते हैं? They don't want to live there, but what is the opportunity that this great country is giving them? We must go back to Gandhi and think of the man who's standing the last in the queue. These are the guys who are last in the queue. And you In a sense, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है. In a sense, what this is showing is गरीब की कोई सुनवाई नहीं. You can be a hero one day, but if you are poor in this country, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है. न पहले थी
ना आज है गरीब की और ना कोई होगी। सुनवाई नहीं है सर। हाँ हाँ हाँ, वकील साहब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा सर आपने, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन गरीब भी एक दिल रखता है सर। हमारे परिवार में सर आर्मी में रहे हैं, हमारे फादर आर्मी में थे, हमारे जो बड़े भाई है वे भी अभी आर्मी से रिटायर हुए हैं। मैंने कभी ये इस चीज़ का सहारा नहीं लिया, न मैंने कभी किसी को बताया कि मैं इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ की कि हमारे घर में जब भी सभी लोगों ने सेना में सभी ने सेवाएं दी है, उसके बाद मैंने भी ये काम किया अपने देश के लिए और बड़ा प्राउडफुली काम किया है जिसे सब लोगों ने सराहा है। और इस काम को देखते हुए मैंने सबसे बोला है कि मुझे सर पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जो मेरा घोंसला जो खुद मेरा है, जो मेरा है सच्चाई में, वो मुझे चाहिए और कुछ मुझे नहीं चाहिए। आपको बस अपना घोंसला चाहिए। अगर कल किसी टनल में कोई इसी तरह से 40-45 लोग फंसे हुए हैं और आपको बुलाया जाए, आप जाएंगे फिर, या कहेंगे इस बार बहुत हो गया, जब तक मुझे घर नहीं मिले मैं नहीं जाऊंगा? सर जैसे हालात, जैसे हिसाब किताब है, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हम फिर भी दिल से मजबूर हैं। आपका कहना सही, गरीब को इंसाफ नहीं, लेकिन गरीब के पास दिल है। आप कहीं भी कहेंगे सर, हम फिर भी खड़े मिल जाएंगे आपको। आप कहीं भी जाएंगे, अगर सरकार आपको कहे अभी भी आप जाएंगे? यानी आपने हिम्मत तो नहीं छोड़ी ना अभी तक? नहीं सर, मैं हिम्मत छोड़ूंगा भी नहीं, और कहीं अगर किसी पे आँच आए और वहाँ मेरी जरूरत हो सर, मैं वहाँ जरूर मिलूंगा। अगर मेरी आवश्यकता मुझे सरकार ने बुलाया तो मैं वहाँ पे जरूर मिलूंगा सर। और आपके बच्चों को क्या, आपका कुछ लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि क्या आपके बच्चों का जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए कुछ चाहिए? क्या चाहिए, कोई मदद चाहिए आपको इस समय? मैं सर अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे मेरा घर चाहिए बस। मैं जो करना होगा मैं खुद कमा के कर लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे मेरा घर चाहिए। Final word to you, Najeeb Jung. What will you tell Waqeel Hassan today? What would you like to tell this brave son of India, sir? वकील साहब, सबसे बड़ी बात, राजदीप साहब का धन्यवाद करिए कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में शाया होगा। आपकी शक्ल हिंदुस्तान देखेगा, आपकी आवाज़ हिंदुस्तान ने आज सुनी है, आपका दर्द आज हिंदुस्तान ने समझा है, और इसीलिए हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है आपकी मदद करने के लिए। मैं, जिसने सरकार में काम किया है, मैं शर्मिंदा हूँ कि हमारे साथियों ने, जो हमारे साथी रहे हैं, उन्होंने ये हरकत की है, और मैं समझता हूँ आज वो लोग भी पशेमान होंगे कि उन्होंने ये जल्दबाजी में हरकत की है। तो आप अपनी हिम्मत न छोड़ें, हिंदुस्तान को आप पे नाज है, आप इसी तरह हिम्मत बनाए रखें, और मुझे विश्वास है कि यकीनन जो गवर्नर साहब ने कहा है उनकी बात अटल है, आपके लिए घर बनेगा, और मैं समझता हूँ अगर भगवान चाहेगा तो उससे बेहतर घर बनेगा। Well, let us hope that happens, Najeeb Jung साहब। वकील हसन साहब, मैंने आपको कल वादा किया है कि जब तक आपको अपना घर ना मिले, हम ये प्रोग्राम इस तरह से, आपकी जो भी बात है, आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या हो रहा है। मनोज तिवारी जी बीजेपी के एमपी हैं, उनको भी हमने दरखास्त की है कि ये जल्द से जल्द आपको अपना घर मिले। Waqeel Hassan Saab, Najeeb Jung, that you've spoken to us on this issue, which reveals just how unequal a society we are even today in the 21st century. Thank you so much for joining me. Thank you.